लेविटिकस 9 चैप्टर 10 चैप्टर हम पढ़ेंगे इंग्लिश में, किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा वचन की गहरी दोस्ती में हमको लेकर आ। हम जानते हैं कि पुराना नियम अब हमारे कोई हम उस रीतियों में हम नहीं चलते हैं, लेकिन हम पिता अगर लायक है खुदा, हम काबिल है खुदा परमेश्वर के तेरे रहस्य और भेद समझने के लिए, तो निश्चित परमेश्वर पिता इन सारी बातों का भेद हम में खोल कि तू क्या कर रहा था मनुष्य और तेरे बीच में इन रास्तों को चलाकर। निश्चित हम इसमें पिता ज्ञानी बनना चाहेंगे। हमारी पिता ज्ञान समझ की ये भूख है खुदा कि हम ये सारी व्यवस्था समझना चाहते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर अगर तू ये चाहता है तो हम निश्चित इसे स्वीकारते हैं। अगर तू इसे नहीं चाहता है तो हम इसको पिता तेरे ही हाथों में भेद बने रहने के लिए दे देते हैं। थैंक यू फादर गॉड कि तूने ये व्यवस्था हमारे पास पहुंचाई और हम इसे पढ़ पाए। थैंक यू आबा फादर गॉड। हमारी वचन की गहरी दोस्ती में ये सारा बदलाव हमारे जीवन पर तू अपने प्रभाव को लाने के लिए हमें दे रहा है। सब कुछ के लिए तेरा धन्यवाद। नासरी यीशु के नाम में हमारी मदद करो इस बाइबल रीडिंग के समय में। यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। Chapter 9 Aaron's sin offering and burnt offering for himself and the people. Moses and Aaron blessed the people, and fire cometh out from the Lord upon the altar. First verse. And it came to pass on the 8th day that Moses called Aaron and his sons and the elders of Israel, and he said unto Aaron, Take thee a young calf for a sin offering, and a ram for a burnt offering without blemish, and offer them before the Lord. And unto the children of Israel thou shalt speak, saying, Take ye a kid of the goats for a sin offering, and a calf and a lamb both of the first year without blemish for a burnt offering, also a bullock and a ram for peace offerings, to sacrifice before the Lord, and a meat offering mingled with oil. For today the Lord will appear unto you. And they brought that which Moses commanded before the tabernacle of the congregation. And all the congregation drew near and stood before the Lord. And Moses said, This is the thing which the Lord commanded, that ye should do, and the glory of the Lord shall appear unto you. And Moses said unto Aaron, Go unto the altar, and offer thy sin offering and thy burnt offering, and make an atonement for thyself and for the people, and offer the offering of the people, and make an atonement for them, as the Lord commanded. Aaron therefore went unto the altar and slew the calf of the sin offering, which was for himself. And the sons of Aaron brought the blood unto him, and he dipped his finger in the blood, and put it upon the horns of the altar, and poured out the blood at the bottom of the altar. But the fat and the kidneys and the caul above the liver of the sin offering he burnt upon the altar, as the Lord commanded Moses. And the flesh and the hide he burnt with fire without the camp. And he slew the burnt offering, and Aaron's sons presented unto him the blood which he sprinkled round about upon the altar. And they presented the burnt offering unto him with the pieces thereof and the head, and he burnt them upon the altar. And he did wash the inwards and the legs, and burnt them upon the burnt offerings on the altar. And he brought the people's offering, and took the goat which was the sin offering
for the people, and slew it, and offered it for sin as the first. And he brought the burnt offering, and offered it according to the manner. And he brought the meat offering, and took an handful thereof, and burnt it upon the altar, and beside the burnt sacrifice of the morning. He slew also the bullock and the ram for a sacrifice of peace offerings, which was for the people. And Aaron's sons presented unto him the blood which he sprinkled upon the altar round about, and the fat of the bullock and of the ram, the rump, and that which covereth the inwards, and the kidneys, and the caul above the liver. And they put the fat upon the breasts. He burnt the fat upon the altar, and the breasts and the right shoulder Aaron waved for a wave offering before the Lord, as Moses commanded. And Aaron lifted up his hand toward the people, and blessed them, and came down from offering of the sin offering, and burnt offering, and peace offerings. And Moses and Aaron went into the tabernacle of the congregation, and came out, and blessed the people, and the glory of the Lord appeared unto all the people. And there came a fire out from before the Lord, and consumed upon the altar the burnt offering and the fat, which when all the people saw, they shouted and fell on their faces. Chapter 10. Nadab and Abihu burnt the priests forbidden wine when they enter the tabernacle, the law of eating the holy things. First verse. And Nadab and Abihu, the sons of Aaron, took either of them his censer, and put fire therein, and put incense thereon, and offered strange fire before the Lord, which he commanded them not. And there went out fire from the Lord, and devoured them, and they died before the Lord. Then Moses said unto Aaron, This is it that the Lord spake, saying, I will be sanctified in them that come nigh me, and before all the people I will be glorified. And Aaron held his peace. And Moses called Mishael and Elisavan, the sons of Uzziel, the uncle of Aaron, and said unto them, Come near, carry your brethren from before the sanctuary out of the camp. So they went near, and carried them in their courts out of the camp, as Moses had said. And Moses said unto Aaron, and unto Eleazar, and unto Ithamar his sons, Uncover not your heads, neither rend your clothes, lest ye die, and lest wrath come upon all the people. But let your brethren, the whole house of Israel, bewail the burning which the Lord hath kindled. And ye shall not go out from the door of the tabernacle of the congregation, lest ye die. For the anointing oil of the Lord is upon you. And they did according to the word of Moses. And the Lord spake unto Aaron, saying, Do not drink wine, nor strong drink, thou nor thy sons with thee, when ye go into the tabernacle of the congregation, lest ye die. It shall be a statute forever throughout your generations, and that ye may put a difference between holy and unholy, and between unclean and clean, and that ye may teach the children of Israel all the statutes which the Lord hath spoken unto them by the hand of Moses. And Moses spake unto Aaron, and unto Eleazar, and unto Ithamar his sons that were left, Take the meat offering that remaineth of the offerings of the Lord made by fire, and eat it without leaven beside the altar, for it is most holy. And ye shall eat it in the holy place, because it is thy due and thy son's due of the sacrifices of the Lord made by fire, for so I am commanded. And
the wave breast and heave shoulder shall ye eat in a clean place, thou and thy sons and thy daughters with thee, for they be thy due, and thy sons' due, which are given out of the sacrifices of peace offerings of the children of Israel. The heave shoulder and the wave breast shall they bring with the offerings made by fire of the fat, to wave it for a wave offering before the Lord, and it shall be thine and thy sons with thee by a statute forever, as the Lord hath commanded. And Moses diligently sought the goat of the sin offering, and behold, it was burnt. And he was angry with Eleazar and Ithamar, the sons of Aaron, which were left alive, saying, Wherefore have ye not eaten the sin offering in the holy place, seeing it is most holy, and God hath given it you to bear the iniquity of the congregation, to make atonement for them before the Lord? Behold, the blood of it was not brought in within the holy place. Ye should indeed have eaten it in the holy place, as I commanded. And Aaron said unto Moses, Behold, this day have they offered their sin offering and their burnt offering before the Lord, and such things have befallen me. And if I had eaten the sin offering today, should it have been accepted in the sight of the Lord? And when Moses heard that, he was content. लैव्य व्यवस्था 9 अध्याय 10 अध्याय हम पढ़ेंगे हिंदी BSI बाइबल में से। लैव्य व्यवस्था 9 अध्याय। हारून द्वारा बलि अर्पण। 9 अध्याय पहले वचन से। 8वें दिन मूसा ने हारून और उसके पुत्रों को और इस्राएली पुरनियों को बुलवाकर हारून से कहा, पाप बलि के लिए एक निर्दोष बछड़ा और होम बलि के लिए एक निर्दोष मेढ़ा लेकर यहोवा के सामने भेंट चढ़ा, और इस्राएलियों से यह कहे, तुम पाप बलि के लिए एक बकरा और होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक भेड़ का बच्चा लो, जो 1 वर्ष के हो और निर्दोष हो, और मेल बलि के लिए यहोवा के सम्मुख चढ़ाने के लिए एक बैल और एक मेढ़ा, और तेल से सने हुए मैदे का एक अन्न बलि भी ले लो, क्योंकि आज यहोवा तुमको दर्शन देगा। और जिस जिस वस्तु की आज्ञा मूसा ने दी, उन सबको वे मिलाप वाले तंबू के आगे ले आए। और सारी मंडली समीप जाकर यहोवा के सामने खड़ी हुई। तब मूसा ने कहा, यह वह काम है जिसके करने के लिए यहोवा ने आज्ञा दी है कि तुम उसे करो, और यहोवा की महिमा का तेज तुमको दिखाई पड़ेगा। तब मूसा ने हारून से कहा, यहोवा की आज्ञा के अनुसार वेदी के समीप जाकर अपने पाप बलि और होम बलि को चढ़ाकर अपने और सब जनता के लिए प्रायश्चित कर, और जनता के चढ़ावे को भी चढ़ाकर उनके लिए प्रायश्चित कर। इसलिए हारून ने वेदी के समीप जाकर अपने पाप बलि के बछड़े का बलिदान किया, और हारून के पुत्र लहू को उसके पास ले गए। तब उसने अपनी उंगली को लहू में डुबोकर वेदी के सींगों पर लहू को लगाया, और शेष लहू को वेदी के पाये पर उंडेल दिया। और पाप बलि में की चर्बी और गुर्दों और कलेजे पर की झिल्ली को उसने वेदी पर जलाया, जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और मांस और खाल को उसने छावनी से बाहर आग में जलाया। तब होम बलि पशु का बलिदान किया, और हारून के पुत्रों ने लहू को उसके हाथ में दिया, और उसने उसको वेदी पर चारों ओर छिड़क दिया। तब उन्होंने होम बलि पशु को टुकड़े टुकड़े करके सिर सहित उसके हाथ में दे दिया, और उसने उनको वेदी पर जला दिया। और उसने अतड़ियों और पांवों को धोकर वेदी पर होम बलि के ऊपर जलाया।
तब उसने लोगों के चढ़ावे को आगे लेकर और उस पाप बलि के बकरे को जो उनके लिए था लेकर उसका बलिदान किया और पहले के समान उसे भी पाप बलि करके चढ़ाया। और उसने होम बलि को भी समीप ले जाकर विधि के अनुसार चढ़ाया और अन्न बलि को भी समीप ले जाकर उसमें से मुट्ठी भर वेदी पर जलाया। यह भोर के होम बलि के अलावा चढ़ाया गया बैल और मेढ़ा अर्थात जो मेल बलि पशु जनता के लिए थे वे भी बलि किए गए। और हारून के पुत्रों ने लहू को उसके हाथ में दिया और उसने उसको वेदी पर चारों ओर छिड़क दिया। और उन्होंने बैल की चर्बी को और मेढ़े में से मोटी पूंछ को और जिस चर्बी से अंतड़ियां ढपी रहती है उसको और गुर्दों सहित कलेजे पर की झिल्ली को भी उसके हाथ में दिया। और उन्होंने चर्बी को छातियों पर रखा और उसने वह चर्बी वेदी पर जलाई। परंतु छातियों और दाहिनी जांघ को हारून ने मूसा की आज्ञा के अनुसार हिलाने की भेंट के लिए यहोवा के सामने हिलाया। तब हारून ने लोगों को की ओर हाथ बढ़ाकर उन्हें आशीर्वाद दिया और पाप बलि होम बलि और मेल बलियों को चढ़ाकर वह नीचे उतर आया। तब मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू में गए और निकलकर लोगों को आशीर्वाद दिया। तब यहोवा का तेज सारी जनता को दिखाई दिया और यहोवा के सामने से आग निकली और चर्बी सहित होम बलि को वेदी पर भस्म कर दिया। इसे देखकर जनता ने जय जयकार का नारा लगाया और अपने अपने मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। नदाब और अबीहू का पाप 10 अध्याय पहले वचन से। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूप दान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। तब मूसा ने हारून से कहा, यह वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। और हारून चुप रहा। तब मूसा ने मिशाएल और एलसाफान को जो हारून के चाचा उज्जिएल के पुत्र थे बुलाकर कहा, निकट आओ और अपने भतीजों को पवित्र स्थान के आगे से उठाकर छावनी के बाहर ले जाओ। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार वे निकट जाकर उनको अंगरखों सहित उठाकर छावनी के बाहर ले गए। तब मूसा ने हारून से और उसके पुत्र एलियाजार और इतामार से कहा, तुम लोग अपने सिरों के बाल मत बिखराओ और न अपने वस्त्रों को फाड़ो, ऐसा न हो कि तुम भी मर जाओ और सारी मंडली पर उसका क्रोध भड़क उठे। परंतु वह इस्राएल के कुल घराने के लोग जो तुम्हारे भाई बंधु है यहोवा की लगाई हुई आग पर विलाप करे। और तुम लोग मिलाप वाले तंबू के द्वार के बाहर न जाना, ऐसा न हो कि तुम मर जाओ, क्योंकि यहोवा के अभिषेक का तेल तुम पर लगा हुआ है। मूसा के इस वचन के अनुसार उन्होंने किया। याजकों के लिए नियम 8 वचन से आगे। फिर यहोवा ने हारून से कहा, जब जब तू या तेरे पुत्र मिलाप वाले तंबू में आए तब तब तुम में से कोई न तो दाख मधु पिए हो न और किसी प्रकार का मद्य, कहीं ऐसा न हो कि तुम मर जाओ। तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में यह विधि प्रचलित रहे, जिससे तुम पवित्र और अपवित्र में और शुद्ध और अशुद्ध में अंतर कर सको और इस्राएलियों को उन सब विधियों को सिखा सको जिसे यहोवा ने मूसा के द्वारा उनको बता दी है। फिर मूसा ने हारून से और उसके बचे हुए दोनों पुत्र इतामार और एलियाजार से भी कहा, यहोवा के हव्य में से जो अन्न बलि बचा है उसे लेकर वेदी के पास बिना खमीर खाओ, क्योंकि वह परम पवित्र है, और तुम उसे किसी पवित्र स्थान में खाओ। वह यहोवा के हव्य में से तेरा और तेरे पुत्रों का हक है, क्योंकि मैंने ऐसी ही आज्ञा पाई है। परंतु हिलाई हुई भेंट
की छाती और उठाई हुई भेंट की जांघ को तुम लोग अर्थात तू और तेरे बेटे बेटियां सब किसी शुद्ध स्थान में खाओ, क्योंकि वे इस्राएलियों के मेल बलियों में से तुझे और तेरे बच्चों का हक ठहरा दी गई है। चर्बी के हव्यों समेत जो उठाई हुई जांघ और हिलाई हुई छाती यहोवा के सामने हिलाने के लिए आया करेंगी, ये भाग यहोवा की आज्ञा के अनुसार सर्वदा की विधि की व्यवस्था से तेरे और मेरे बच्चों के लिए है, तेरे और तेरे बच्चों के लिए है। फिर मूसा ने पाप बलि के बकरे की खोजबीन की तो क्या पाया कि वह जलाया गया है। इसलिए एलियाजार और इतामार जो हारून के पुत्र बचे थे, उनसे वह क्रोध में आकर कहने लगा, पाप बलि जो परम पवित्र है और जिसे यहोवा ने तुम्हें इसलिए दिया है कि तुम मंडली के अधर्म का भार अपने ऊपर उठाकर उनके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करो, तुमने उसका मांस पवित्र स्थान में क्यों नहीं खाया। देखो, उसका लहू पवित्र स्थान के भीतर तो लाया ही नहीं गया। निस्संदेह उचित था कि तुम मेरी आज्ञा के अनुसार उसके मांस को पवित्र स्थान में खाते। इसका उत्तर हारून ने मूसा को इस प्रकार दिया, देख, आज ही उन्होंने अपने पाप बलि और होम बलि को यहोवा के सामने चढ़ाया, फिर मुझ पर ऐसी विपत्तियां आ पड़ी है। इसलिए यदि मैं आज पाप बलि का मांस खाता तो क्या यह बात यहोवा के सम्मुख भली होती। जब मूसा ने यह सुना तब उसे संतोष हुआ। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं यीशु, ये वचनों के अंदर के भेद रहस्य के लिए पिता हम आपके हाथों में रहते हैं और परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे परमेश्वर है जो सब कुछ के मालिक हो। थैंक यू फादर गॉड। पिता परमेश्वर, हमें पवित्र आत्मा हमें इन वचनों में फिट एंड फिक्स कीजिए। ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑल्टरलीनेस पे लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। एक्ट्स 18 चैप्टर 24 वर्स से 19 चैप्टर 1 वर्स से 7 वर्स तक। सैम्स 23 चैप्टर 24 चैप्टर। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। प्रेरितों के काम 18 अध्याय 24 वचन से 19 अध्याय 1 वचन से 7 वचन तक। भजन संहिता 23 अध्याय 24 अध्याय। हम अकेले में पढ़ेंगे। जब हम व्यक्तिगत समय में पर्सनल टाइम में इसे पढ़ेंगे तो परमेश्वर का आत्मा हम वचन के अनुसार कुछ सुधार करना है तो वह हमें बता पाएगा, और ऐसा हम सुधार लेकर परमेश्वर के लिए जो चाहिए उस कैरेक्टर में, चरित्र में ढलते हुए आएंगे। परमेश्वर हमारा इस्तेमाल कर पाएगा। ऐसा होने के लिए हमने फैसला लिया है कि हम व्यक्तिगत समय में, पर्सनल टाइम में ये रीडिंग करेंगे, लेकिन आप सभीयों ने ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। जिसको जैसे परमेश्वर का आत्मा प्रेरणा देता है आप वैसे कर सकते हैं। निश्चित यही करना है, परमेश्वर के आत्मा ने हमको सिखाना है, परमेश्वर का आत्मा का लाभ हमने उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमेन आमेन आमेन। पवित्र आत्मा हमें इन वचनों में फिट एंड फिक्स कीजिए। ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमेन आमेन आमेन।